Mbappe at PSG or Lewandowski at Bayern? Overrated player from current Barca team. I really like that question. Is Olise better than Yamal? Greatest Barca player ever, and it's not Messi. You know, this answer is going to be very sad. Welcome to EGX Create 11. I am very interested in this episode to discuss Barca mostly, also Bayern and PSG a little bit. With us, cinematographer and football content creator Ibrahim Bari. Welcome, Ibrahim, on the show. Thank you so much. Thank you so much for having me. And the first one, just to break the ice, it's a rapid fire round, so you have to be very quick in this round, okay? Mbappe at PSG or Lewandowski at Bayern? Lewandowski at Bayern any day. Any day. Overrated player from current Barca team. Marcus Rashford. That one was very clever. One player from Real Madrid that you would secretly want for Barca. Valverde. Bayern dominance in Bundesliga versus PSG dominance in League One. Which one is more artificial? PSG at League One. Yamal or Pedri? Ouch, I don't like that. Pedri. Biggest waste of La Masia talent in the last decade. Ansu Fati. Sell now for max value. Rafinha, Araujo or De Jong? Araujo. Greatest Barca player ever, and it's not Messi. Neymar. Most iconic Barca t-shirt. I'll tell you, I have that. Yes. It's a Coldplay collab in which we beat Real Okay, Madrid. Coldplay collab. One season wonder you'll never forget. You know, this answer is going to be very sad. But if you remember this player from Ronald Koeman's squad called Luke de Jong. Yeah, Tiger? yes. Yeah, I want to say him because he actually tried his level best to get us out of the depths. We did not have a good squad. People were focusing on Memphis Depay a lot in that squad, but I say Luke de Jong for me. Is Olise better than Yamal? I really like that question. Okay, I really like that question, Yeah. and I'm glad that this is more based on my opinion because Yes. I would pick Olise. And Okay. hear me out, all Barcelona fans. Okay, I'm not trying to pull a Figo or something. I'm not a snitch, but Olise, and I'll tell you why. Because Yamal, I believe he's great. He's very talented, arguably one of the best right now. But Olise has been proving himself lately, and I believe Yamal, the perfect answer for that would be right now Olise and Yamal for a long-term project. I trust in Yamal, but again, he has a lot to prove. But don't you think Olise has, better squad depth in comparison to Yamal? Olise has Harry Kane, one of the best strikers in the world. Olise has apna Luis Diaz. Yeah, absolutely. So, obviously with Harry Kane, Luis Diaz, it is relatively easy. But I believe when you have to select a player based on their individuality, then squad depth obviously it applies a lot. Current performance में बहुत मैटर करता है स्क्वाड डेप्थ डेफिनेटली. बट अगर इंडिविजुअलिटी पे बात करें तो मेरे को बार्सिलोना फैंस का ये टेंडेंसी होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा एक प्लेयर को हाइप कर देते हैं. एक प्लेयर को इतना हाइप कर दो कि और उसको भी दिखता है ना, वो भी देख रहा है कि उस पे इतना प्रेशर डाला जा रहा है. दे फॉल अंडर प्रेशर, देन दे स्टार्ट टू आउट नॉट परफॉर्म एज वी एक्सपेक्ट देम टू. सो मेरे को पर्सनली वो नहीं करना है यमाल के साथ. और व्हेन इट कम्स टू ओपिनियन, ओलीसे इवन विदाउट द स्क्वाड डेप्थ इंडिविजुअली अपने आप को प्रूव कर रहा है. यमाल भी कर रहा है, बट यमाल को अभी बहुत देखना बाकी है. बट यमाल इंटरव्यू में तो अपने आप को बहुत ज्यादा हाइप कर देता है. गलत करता है ना, वही तो फिर मुश्किल हो जाता है ना हम लोगों को. Yes. बिकॉज़ अभी आप मेरी टीपी देखो ना, अभी तक हटाया नहीं है मैंने वो. Who do you think you'll sell from Barca right away and why? Okay, for that question, मेरे से जब लोग ये पूछते थे ना पहले, तो मैं आपके रैपिड फायर से भी ज्यादा तेज बोलता था फेरन टोरेस. ठीक है? Definitely, yes. पर अभी I want to hold back on that opinion a little. Because currently with Lewandowski not playing the whole 90, फेरन टोरेस भी ट्राई कर रहा है और परफॉर्म भी करा है उसने काफी दफा. पहले भी मैं बोलता था कि चैंपियंस लीग में ये मार लेता है, ला लीगा में पता नहीं इसको क्या हो जाता है. ठीक है. और लेवेंडोस्की के एब्सेंस में ही इज ट्राइंग. वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एज अ सॉलिड स्ट्राइकर, आई वुड से. तो फेरन टोरेस को आई वुड लाइक टू सी फॉर वन मोर सीजन. एंड अराउजो, आई बिलीव वी डेफिनेटली should it's time to let him go now. वो अपने आप को प्रूव कर चुका है पहले एब्सेंस में, जब हमारा स्क्वाड उतना सॉलिड नहीं था, जब हमारे पास यमाल और ऑलमोस्ट जैसे प्लेयर्स हमारे पास जब नहीं थे, तब उसने करा है अपने आप को प्रूव. बट रिसेंटली आई आल्सो रेड अबाउट हिम, वो थोड़ा मेंटल हेल्थ को लेके भी इज स्ट्रगलिंग अ लॉट. तो वो परफॉर्मेंस पे डायरेक्टली उसके इम्पैक्ट किया है. And I don't want to be harsh on him, but I believe that not because he's a bad player, but because उस system को fit नहीं कर रहा है. हमें we need a more experienced defender, center back who can control the game, जिसको आसपास के लोग उस पे trust कर सके. Not just the fans trusting you, your team also has to trust you, your goalkeeper has to trust you. तो वो अराउजो में थोड़ा मिसिंग है अभी.
and I believe I would definitely like to let him go and get another more experienced defender. कौन सा चॉइस होगा अगर डिफेंडर लाए तो? बस तो नहीं, रूमर्स है. रूमर्स तो है बट थोड़ा महंगा पड़ जाएगा यार, बिकॉज फाइनेंशियल्स आर नॉट वेरी सॉर्टेड फॉर बार्सिलोना. या महंगा पड़ जाएगा अभी, बट सी ऑनेस्टली आई टेल यू व्हाट, इफ वी गिव मोर मिनट्स, मोर टाइम टू कुबारसी, तो वो भी अपने आप को प्रूव कर सकता है. इनएक्सपीरियंस है, दैट इज व्हाई वी कांट ट्रस्ट हिम. सो बास्टोनी इज वेरी आइडियल, बट आई वांट टू सी कुबारसी मोर. मेरे को उसको थोड़ा और ट्रस्ट करना है, उसको थोड़े और मिनट्स देने हैं, क्योंकि ही हैज द मेंटालिटी, बट एक्सपीरियंस नहीं है. और बड़े स्टेजेस पे इफ यू प्ले इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स और फिर आप उनको गालियां दोगे बिकॉज़ दे आर नॉट परफॉर्मिंग, तो दैट्स नॉट राइट. बाकी रूमर्स जॉन लुकुमी बोलोग्ना एफसी से खेलता है सेंटर बैक, उसके अराउंड भी बहुत सारे बन रहे हैं. उसके अराउंड भी बन रहे हैं, बट आई वुड से बास्टोनी मेरे को ज्यादा अभी मतलब इट बिकम्स सी वो मेरा वो हो जाता है ना एक ख्वाहिश. ठीक है, मेरे को वो उसके तरफ मैं थोड़ा बायस्ड हूँ. वो बंदा बहुत बढ़िया खेलता है, मेरे को वो चाहिए अपने स्क्वाड में. वो बंदा डेफिनेटली बहुत अच्छा खेलता है. और ये सेम प्रॉब्लम तो शायद सेंटर बैक की हम भी फेस कर रहे हैं. इट्स वेरी अंडररेटेड इशू इन रियल मैड्रिड फैन बेस, क्योंकि इस साल देखा होगा एडम मिलिटाओ वाज इंजर्ड लाइक थ्रू आउट द सीजन, और अभी भी फिलहाल वो इंजर्ड ही बैठा हुआ है. उस अटेम्प्ट के बाद वो इंजर्ड हो गया था, जो लास्ट मैच में जिसने अटेम्प्ट किया था गोल को, उसके बाद वो इंजर्ड हो गया था. एंड स्लॉटरबैक के अराउंड बहुत सारा हाइप बन रहा था कि आएगा आएगा आएगा, बट ही हैज साइंड हिज अपना क्लॉज साइन के लिए उसने बायर्न के साथ. बट हल्का हल्का टीज ये भी है कि 45 मिलियन का वो है इसका क्लॉज. 45 मिलियन दो और शॉर्ट अप. इट्स लाइक टीज कर रहा है बार बार कि आऊंगा या नहीं आऊंगा, आऊंगा या नहीं आऊंगा. तो ऐसा सब चल रहा है. बट यार इनफैक्ट मेरे को बार्सिलोना के लिए क्या लगता है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, कसाडो को और अपना कौन सा एक सेंटर बैक है उसका, एरिक गार्सिया बहुत अच्छा मेरे को डिफेंडर लगता है बार्सिलोना के लिए. प्रॉब्लम हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ है कि इन प्लेयर्स को सिस्टमाइज नहीं किया हम लोगों ने सही से. एरिक गार्सिया रह चुका है स्क्वाड में हमारे पहले से रहा वो के साथ. अगर उसको तब हम मिनट्स देते, बिकॉज़ वी ऑलरेडी न्यू दैट सीजन वाज डूम्ड फॉर अस, सो माइट एज वेल उसको यूज करो अपने प्लेयर्स को एक्सपीरियंस देने के लिए. एरिक गार्सिया को वहां पे एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत थी, तो अभी वो जैसा परफॉर्म कर रहा है वुड हैव बीन परफॉर्मिंग बेटर इन माय ओपिनियन. एरिक गार्सिया से आई हैव हाई होप्स, बट अगेन इनएक्सपीरियंस हो जाता है. बट एरिक गार्सिया गुबारसी अगर पेयर होते हैं तो दे परफॉर्म रियली वेल यार. मैंने बहुत मैचेस में देखे दोनों का पेयरिंग, और बहुत अच्छा काम करता है वो. वेरी सॉलिड पेयरिंग. एंड इफ वी कैन प्ले, अगर कुंडे सही से राइट बैक खेल लेता है तो लेफ्ट बैक का तो वी आर सॉर्टेड. वी हैव कैंसेलो, वी हैव बाल्दे. यू हैव द बेस्ट डेप्थ इन ला लीगा. एब्सोल्युटली. बाल्दे मेरे को बहुत पसंद है. इनफैक्ट इफ यू आस्क मी इफ आई वुड वांट टू प्ले कैंसेलो और बाल्दे, आई विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू आंसर दैट, बट आई थिंक आई विल एंड अप सेइंग बाल्दे. डेफिनेटली. कांसेलो डिनाई कर नहीं सकते, उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बट बाल्दे के पास जो फ्लेयर है ना, वो फ्लेयर मिसिंग हो चुका है लेफ्ट बैक के अंदर अब. एंड द लिंकअप इज रियली ग्रेट विद जो भी प्लेयर के हाथ वो लिंकअप भी चाहता है, बहुत अच्छा करता है अटैक के अंदर लिंकअप. Yeah, I was just saying that he came in right after Jordi Alba. Yes, Jordi Alba के बाद. वो स्पेस को फिल करना भी बहुत बड़ा आस्क था. और एन एकेडमी प्लेयर, तो वो उसको क्रेडिट देना होगा बाल्दे को. Build your 11. Dream team by using current generation of football players. Players should be from PSG, Bayern and Barcelona. And each team you can pick not more than 4 players. Oh, okay. So you have to be very, 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 very specific and very precise when you are building this team. ठीक है. Okay. If we had to pick goalkeepers, oh my God, please don't cancel me, but Joan Garcia. Sure. Or Neuer. Joan Garcia. Left back again. If you're talking about the Dream 11, then Cancelo or Balde. Okay. Defenders की अगर हम लोग बात करें तो I'd say Kubarsi will be there. एक प्लेयर रह जाएगा बस बार्सिलोना से, या क्योंकि 3 प्लेयर्स आप ले चुके हो. Okay. No, we'll take Kubarsi off. Sorry. So you're taking Kubarsi off, okay. Right back में we have Nuno Mendes. Right back में you have Nuno Mendes. A commanding defender in that scenario, Marquinhos को रख लेते हैं. Okay, Marquinhos, nice choice. We have Upamecano यार. हाँ, I was thinking, हम वही सोच रहे थे. Upamecano, yeah, from Bayern definitely. Kimmich. Okay. And Conor Lemmer, ball winner. और Pedri. ठीक है, midfield is done. Okay, attack. Rafinha, Olise, one flank. हाँ. और one player left. And it's Harry Kane. Harry Kane, yeah. Harry Kane. I was thinking Dembele, but no. Harry Kane. Harry Kane over Dembele any day. Great squad यार, हो गई खत्म.